Good morning, grade 2. Good morning, ma'am. Assalamu alaikum. Good morning. How are you? We are fine, thank you. Very good, excellent. So, this is your English class. Yes. Are you ready? Yes. So, what is our Yes, topic? Simple computer sentences. What is it? Simple. Yes. अभी ये क्या है? Future tense. Simple future tense. Yes, good. Today's topic is simple future tense. Okay, before starting this topic, we will revise the previous two tenses that we have done in our class. Can you tell me what is simple present tense? Anyone? What is simple present tense? He worked in a bank. He works or he works? Work. Okay, before giving me example, just tell me what is simple present tense? होता क्या है? Present tense कौन से time को show करता है? Simple present tense. कौन से time को show करता है? मैम पिछले वक्त को. पिछले time को show करता है. तो फिर past tense किस time को show करता है? मैंने Yes. Anyone? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट टाइम को गुजरे हुए टाइम को शो करता है तो पास्ट टेंस कौन से टाइम को शो करता है? अभी के वक्त को. अभी के वक्त को पास्ट टेंस शो करता है. मैम जो काम हो रहा होता है. The thing that is happening now, what is the tense that? मैम Tense किस चीज को? प्रेजेंट. मैम प्रेजेंट टेंस. मैम प्रेजेंट टेंस. मैम प्रेजेंट टेंस. Present tense. मैम प्रेजेंट. Present मैम tense. प्रेजेंट टेंस. मैम प्रेजेंट टेंस. मैम प्रेजेंट टेंस. Okay. So here is the comparison of these three tenses. What is simple present tense? The present tense of a verb tells that something is happening now. जो अभी कोई काम आप कर रहे हैं उसका वर्ब क्या शो करता है कि वो प्रेजेंट टेंस है. फॉर एग्जाम्पल, I am eating the apple. So here eat is verb. Eat is verb. But this thing is happening. ये अभी हो रही है. That's why we add ing here. ing shows कि ये काम अभी हो रहा है. मैं अभी एप्पल खा रही हूँ. So what is the tense? This is present tense. You are taking class at the right now. This time you are studying. You are sitting. अभी आप जो काम कर रहे हो, what is that? That is present tense. Present tense. Present tense. Present tense. So what is past tense? The past tense of a verb tells that something already happened. जो काम already हो चुका है, that is done. वो क्या है? That is past tense. For example, I ate the apple. मैंने एप्पल खा लिया. ठीक है? You are done. Apple is finished. ये देखें.
यहाँ पे आप past tense. Now, the next is future tense. अब future tense क्या होता है? The future tense of a verb tells that something will happen later. फ्यूचर टेंस वो होता है जो हम काम अभी करेंगे. Yes, good. The thing that will happen later. काम जो अभी आपने नहीं किया and you are planning for that. मैं ये काम करूँगा या करूँगी. तो जो चीज आपकी प्लानिंग में होती है that is future tense. What is it? फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस. जी. I will eat that apple apple. यहाँ पे क्या चीज आपको नजर आ रही है in the future tense? Will. Will. यहाँ पे म्यूजिक आपको नजर आई है जो हमने ऐड किया. मैम will आएगा. Will. So, what is simple future tense? To describe action in the future, we use simple future tense verb. For example, here, what are you thinking about? The action you are thinking that in the future I will do, that is future tense. Here both. मैम shall फिर कहाँ पर यूज करते हैं? बेटा मैं अभी आपको नेक्स्ट बता रही हूँ. ठीक है, आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी. विल कहाँ यूज होता है और शैल कहाँ यूज होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ अगेन एक प्लानिंग हो रही है आपके माइंड में कि मैं ये काम करूंगा, हम ये काम करेंगे. वी विल प्ले द बीच टुमारो. दिस इज योर प्लानिंग कि हम कल बीच पे प्ले करेंगे. सो दिस इज फ्यूचर टेंस. यहाँ तक समझ आइए आपको कि फ्यूचर टेंस क्या होता है? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, good. The simple future tense is used to describe something that is sure to happen. My father will celebrate his 40th birthday tomorrow. Tomorrow is the next day. जो दिन अभी नहीं आया. ठीक है, तो my father will celebrate. Celebrate is a verb and here we add will. Will celebrate his 40th birthday tomorrow. So here, to tell about that we want to do in the future. Future tense tells us that we want to do in the future. I will buy a toy. Now this is your planning. कि मैंने वो टॉय अभी बाय करना है. ठीक है, आपको कोई चीज पसंद आई और आप प्लान कर रहे हैं कि मैं वो खरीदूंगा. सो आई विल बाय अ टॉय. आई विल बाय अ टॉय. एंड सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट व्हाट वी थिंक विल हैपन लेटर. ये एक प्रिडिक्शन भी होती है. ठीक है, कि नेक्स्ट क्या होगा. जो आपकी प्रिडिक्शन होती है, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा. That is also a future tense. I think it will rain tonight. Now this is your assumption. This is I think it will rain tonight. Okay. So how we can make simple future tense? Since simple future tense को कैसे बनाते हैं? There are three ways to make simple future tense. First, we use will. We use will before the base form of a verb to make a simple future tense. Now, what is base form of the verb? आपको form of the verb याद है? We did base form. Eating the apple. Yes. Participle and past participle. ये तीन forms हम लोगों ने की थी verb की. ठीक है? बेस फॉर्म होती है, उसके जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म, उससे पहले हम ऐड कर देते हैं विल. अब देखिए, जब हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, इन द प्रेजेंट टेंस वी यूज ओनली द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता.
In the past tense, we use second form of the verb, past form of the verb. But in the future, we use base form again and we add will before the base form of the verb. For example, will go. Will play. Now go is the base form of the verb and before go we add will. Will go. Play is the base form of the verb and before play we will add will. Will play. Eat. Eat is the base form of the verb and before eat we add will. Will eat. And the next is using shall. अब हम will भी use करते हैं और shall भी use करते हैं. Now where we use shall? Instead of using will, shall can also make the simple future tense, but only when the subject is either I or we. Shall कहाँ पे use होता है? Before with I and we. I shall be late. We shall be late. ठीक है, जहाँ पे I और we use होते हैं उसके साथ हम shall use करते हैं for making simple future tense. अब समझ आइए shall कहाँ use होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now there is another method to make simple future tense using going to. वैसे आप पहले दो मेथड ही यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको तीसरा मेथड भी साथ बता रही हूँ. ठीक है, तो यूजिंग गोइंग टू भी यूज होता है फॉर मेकिंग फ्यूचर टेंस. वी कैन मेक अ सिंपल फ्यूचर टेंस बाय एडिंग अ बी वर्ब. बी वर्ब क्या होता है? बेस फॉर्म, लाइक इज, आर और एम. These are the B verbs, is, are or am. And going to before the form of the verb. Now look at this sentence. I am going to draw. Here what is verb? Go. Go is the base form of the verb. Going. यहाँ पे देखें, going से ing से पहले क्या वर्ड लिखा हुआ है? go, go. Going. Going. Go. Go is the base form of the verb. I am going to draw. Ben are going to swim. We are के साथ ing क्यों लगाया है? Because यहाँ पे go से पहले क्या आ रहा है? am. go से पहले क्या आ रहा है? Am. होता है वहाँ वर्ड क्या ऐड कर देते हैं? I am going to is also used to make future tense. I am going to draw. We are going to swim. And he is going to laugh. I am going to draw, we are going to swim, and he is going to laugh. Now look here. Before going, what is written? Am, are, is. क्या लिखा हुआ है? Am, are, is. यहाँ जिधर जिधर am, are और is लिखा होगा, उसी वर्ड के साथ लगाएंगे यानी अभी ड्रॉ करेंगे. I am going to draw. Now how we can make interrogating sentence? अभी तक टेंसेस हमने की है वो क्या थे? वो पॉजिटिव टेंसेस थे. So now I will tell you how you can make negative and interrogative tenses. Tenses are negative. इसका नेट नहीं सही आता मैं पार. Grade 2 which tenses are negative? Grade 2, are you listening me? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Tenses. टेंसेस नेगेटिव टेंसेस होते हैं. मैम नेगेटिव टेंसेस वो होते हैं जिनके साथ नॉट लगता है. गुड हानिया, एक्सीलेंट. और व्हाट आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? मैम जिनके साथ विल लगता है. विल साथ लगेगा, फ्यूचर टेंस सबके साथ विल लगेगा, सारे इंटरोगेटिव टेंसेस हो जाएंगे. आई लगेगा. This is the third column. Question mark shows that I will नहीं आ रहा है. you kindly mute your mic. मैं सबको म्यूट कर दूंगी. काइंडली म्यूट योर माइक. Now here the first one is positive sentences. I will come. This is positive tense. It shows कि आप जाएंगे ही. I will come. मैं आऊंगा या मैं आऊंगी. This shows your positive decision. Now here, I will not come. Now here the word not shows that this is the negative sentence. Now look at the third one. Here, will I come? Now look, पहले will कहाँ था? After I था ना? In the last column, will शुरू में आ गया है. जब will start में आ जाएगा, will या shall दोनों में से जब ये स्टार्ट में आ जाएंगे तो इट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग. आप पूछ रहे हैं विल आई कम, क्या मैं आऊं? तो जब विल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है और क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. एंड द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यू पुट क्वेश्चन मार्क. आप क्वेश्चन मार्क नहीं ऐड करेंगे, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस. जैसे आप क्वेश्चन करते हैं किसी से. यहाँ आप कह रहे हो आई विल कम, मैं आऊंगा. आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा. विल आई कम, क्या मैं आऊं? सो इट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग, आप पूछ रहे हैं. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल स्टार्ट में आ गया. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम. बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा. सिर्फ क्या आपने करना है, यू विल चेंज द पोजिशन ऑफ विल. Look at the second sentence. You will come. When we make negative sentence, we add not after the helping verb will or shall. You will come, you will not come. Now where we use not? After the verb, helping verb will. After will, you will add not. So it will be in negative sentence. You will come, you will not come. Now will. Now look at the positive sentence. यहाँ से आपने क्या करना है, विल को स्टार्ट में ले आना है. विल यू कम एंड देन क्वेश्चन मार्क. So it will be interrogative sentence. Look at the third one. He will come. He will come is a positive sentence and you will put full stop at the end of this sentence. He will not come. You add not after will. So it is negative sentence now. He will not come. Again, we will put will in the start of the sentence, so it will he come. Will he come is a interrogative sentence. She will come. She will not come. Will she come? It will come. It will not come. Will it come? We will come. We will not come. Will we come? यहाँ in the first sentence will लगा हुआ है और आप will की जगह shall भी यूज कर सकते हैं. both are correct. ठीक है, दोनों ठीक होंगे. आप will लगाएं या shall लगाएं. बट with I और we हम सिर्फ I और we के साथ shall लगाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम shall नहीं लगाएंगे. आप इधर तक किसको समझ आई है और किसको नहीं आई है वो भी बता दो.
Ayan Abid, are you there? Ayan Abid, are you there? Yes, ma'am. आपको समझ आई है बेटा? नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कहाँ से समझ नहीं आई? Yes, Ayan. Madad Ali, are you there? Madad Ali, are you present? No. हाँ, मुझे फोन की समझ नहीं आ रही है, आप क्या कह रही हैं? रेहान, आपको क्या समझ नहीं आई बेटा? मैम ऊपर वाले का, सबसे ऊपर जिसमें पॉइंट लगा हुआ है, इसमें ऊपर वाले आई विल कम, ये वाला? यस मैम। बेटा दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। जब आप विल के साथ नॉट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? जब आप कह रही हैं कि मैं ये काम नहीं करना, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, जिस वर्ड में नहीं आ जाता है, नॉट आ जाता है, वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? और आप नॉट कहाँ पे यूज करते हैं? आप नॉट विल के बाद यूज करते हैं। विल या शेल, आप जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं उसके बाद आप नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। ओके मैम, ठीक है, आप समझ आइए। इसको छोड़, ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आप क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है? ये माइनस और प्लस साइन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लगाए हैं कि दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। ये आपने क्वेश्चन में कहीं लगाने नहीं है, आपने सेंटेंस में कहीं भी नहीं लगाने, ठीक है? सिर्फ आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसके एंड पे आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस तो सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। नाउ क्लियर? यस मैम। इसके अलावा किसको समझ नहीं आई? कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो? ये वाला, ये जो लिखा है सबको समझ आ गई है? मैम से पूछे। यस मैम। मैम समझ आ गई है। ओके गुड। यस मैम। यस मैम मुझे बोलो। ये जो आपने सबसे पहला सेंटेंस बताया मुझे ये नहीं समझ आ रहा। लास्ट पेज पे बेटा, मैम फर्स्ट कहाँ पे? मैम ये यहाँ पे? यस। अच्छा, आई मैम विल गोइंग टू विल में क्या होता है? जी, क्या डिफरेंस है इनमें? किसका बेटा? गोइंग टू और विल में? बेटा डिफरेंस कोई नहीं है, ये तीन तरीके हैं आपके, 3 मेथड्स हैं जिनसे आप फ्यूचर टेंस बनाते हैं, ठीक है? या तो आप विल और शेल लगा के फ्यूचर टेंस बनाते हैं या फिर आप गोइंग टू लगा के फ्यूचर टेंस बनाते हैं, ठीक है? गोइंग टू का मतलब है आप ये काम करने जा रहे हो, अभी तक आपने ये काम नहीं किया। आई एम गोइंग टू ड्रॉ, वी आर गोइंग टू स्विम, ही इज गोइंग टू लाफ। मतलब अभी तक ये काम नहीं हुआ और ये काम वो करेंगे। इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आप विल और शेल भी लगा सकते हैं। जो सिंपल और इजी वो विल और शेल। यस यान, एनी क्वेश्चन? अगला पेज दिखा रहे सबसे लास्ट। नाउ लेट्स सॉल्व अ वर्कशीट, फिर आपको समझ आ जाएगी कि कैसे बनेंगे, ठीक है? तो विल में लगेगा नॉट। ठीक है, बिल्कुल सही सही लगी तो फ्रेंड्स को नोट कर देंगे। अभी आप टीचर आप फर्स्ट में करेंगे, मैंने समझ लिया सारा। now look here. Fill in the following blanks with the simple future tense of verb given in brackets.
नाउ लुक हियर, ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इन वर्ब को यूज करके सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है. नाउ लुक एट द फर्स्ट वन. He be next March. Now here you will use will. He will be 16 next March. आपने ये be क्या है? Be is the verb name. verb. So he will be. आपने simple क्या ऐड किया? Will. Before be आपने simple क्या ऐड कर दिया? Will. आपने will ऐड कर दिया तो ये आपका future tense बन गया. He will be 16 next March. Number 2. I go to school tomorrow. यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्या वर्ड दिया गया है? Go. तो आपने यहाँ पे go की फॉर्म को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना. Go is the base form of the verb. First form. आपने क्या यूज करने, मैंने आपको बताया था विद आई और वी कैन यूज शेल. आप विल भी यूज कर सकते हैं और आप शेल भी यूज कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. सो हियर गो इज वर्ब, तो आपको ऑलरेडी ब्रैकेट में गिवन है, तो आपने सिंपली क्या ऐड कर देना है? शेल गो. आई शेल गो टू स्कूल टुमारो और आई विल गो टू स्कूल टुमारो. बोथ आर करेक्ट. इसका मतलब क्या है? कि मैं कल स्कूल जाऊंगा. ठीक है, आपसे कल जाना है, अभी आप नहीं गए. दिस इज फ्यूचर टेंस. जो काम अभी नहीं हुआ, दैट इज फ्यूचर टेंस. Number 3. When the bell rings, the students Will go. Now here Will go. and will is the helping word. The students will go to their classrooms. आपने क्या ऐड किया यहाँ पे? Will go. Will. Simply you will add will, so it will become future tense. Will go. समझ आइए? Yes ma'am, मुझे सारी समझ आ गई है. Good Ryan and Yes ma'am. Mohammed Shah, आ सकते हैं. Ayan Farooq. मैम इसके साथ शेल भी लगा सकते हैं. किसके साथ? शेल. आई के साथ, स्टूडेंट्स के साथ. वी के साथ मैम. Yes, we के साथ. Number 4. If she works hard, she will get good marks. If she works hard, she will get good marks. Here you add will. With get, what is get? Get is the first form of the verb. She will get good marks. मैम हम टुमारो की वजह से फ्यूचर लगाते हैं ना? जी, हम टुमारो की वजह से फ्यूचर लगाते हैं ना, फ्यूचर टेंस. जी सिर्फ tomorrow की वजह से नहीं. देखिए आपको जब आप सेंटेंस रीड करते हैं, ठीक है, जब आप सेंटेंस रीड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये काम अभी नहीं हुआ. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें टुमारो तो नहीं लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट मार्च. नेक्स्ट मार्च लिखा हुआ है ना, मार्च जो अभी नहीं आया. सारे सेंटेंसेस में टुमारो नहीं होगा. आपने सेंटेंस को जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्या है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. दिस सेंटेंस, in this sentence, next March is showing that this thing is not happened. It will happen. Okay? Now look at the fourth one. If she works hard, यहाँ पे भी tomorrow नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ if she works hard. अगर वो work hard करती है, she will get good marks. अगर आप hard work करेंगे तभी आपके good marks आएंगे ना. ठीक है, यानी अभी ये काम अभी नहीं हुआ, ये तभी होगा जब आप वर्क हार्ड करोगे. इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल गेट गुड मार्क्स. अभी उसके गुड मार्क्स नहीं आए, उसके गुड मार्क्स तभी आएंगे जब वो वर्क हार्ड करेगी. मैम पर जिधर टुमारो होता है उधर तो हम पास्ट या प्रेजेंट टेंस तो नहीं लगा सकते ना? नहीं, वो फ्यूचर टेंस ही होता है. टुमारो का मतलब क्या है? जो कल अभी नहीं आया, द डे दैट विल कम. नंबर 5.
I shall not take the test tomorrow. Now here in the bracket it is given that this is negative sentence. Bracket में आपको already given है कि this is negative sentence, not take. So what you will write? You will write shall not take. ठीक है? You will write shall before not take. I shall not take the test tomorrow. इसके यहाँ shall की जगह आप लगा सकते हैं I shall not take the test tomorrow. This is negative sentence. Now this is negative sentence because what is used in this sentence. Number 6. Now look at the end of this sentence, question mark. इस सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क है. इट मींस दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आपको स्टार्ट में ब्लैंक दी गई है, तो स्टार्ट में ब्लैंक दी गई है बिकॉज एंड पे क्वेश्चन मार्क है. इट शोज दैट दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में हम क्या लगाते हैं? विल. विल शैल. विल प्ले बास्केटबॉल क्वेश्चन मार्क. अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो ये क्या होता? मैम हम WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं ना. व्हाई, हाउ. फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम फ्यूचर टेंस के लिए जो चीज यूज होती है, जो वर्ब यूज होते हैं, हम सिर्फ वो लगाएंगे. मैंने आपको रूल बता दिए फ्यूचर टेंस के. मैम मुझे 5 वाला समझ नहीं आया है. बेटा ये नेगेटिव सेंटेंस है. यहाँ नॉट टेक लिखा हुआ है. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? नॉट टेक. जिस सेंटेंस में नॉट आता है वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. और मैंने आपको रूल बता दिया है कि आप आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं. ठीक है? शैल क्या है? शैल बी हेल्पिंग वर्ब. आई शैल नॉट टेक द टेस्ट टुमारो. मैं कल नहीं दूंगा. सो shall, after shall you will use not. shall के बाद not आएगा. shall या will के बाद not लगाएंगे तो that sentence will be negative sentence. आप समझ आइए? I shall not सिर्फ shall के बाद, shall और will के बाद not आएगा. नंबर 6 समझ आइए. नंबर 6. यस. नंबर 6 सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं जरा. दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. मेक इट पॉजिटिव सेंटेंस. We will play, man. We will play. He will play what? Basketball. We will play basketball. He will play. Basketball. Good, excellent, Jan. Now make it interrogative sentence. Make sentence number 6. Sentence number 5. Interrogative sentence. नहीं, जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? शेल स्टार्ट में शेल स्टार्ट में आ जाएगा. Shall I take the test tomorrow? Shall I take the test tomorrow? Yes, ma'am. Good, Ryan. Ryan is participating. Where are all of you? बाकी किधर है पूरी क्लास? Cleanliness, cheerfulness. Ma'am. Yes. मैं भी हूँ. जी जैसे समझ नहीं आ रही. बेटा क्या समझ नहीं आ रही? आप मुझसे पूछे ना. नहीं समझ आ रही, आप मुझे साथ साथ पूछे. सारी समझ आ रही है. हसीब आपको क्या समझ नहीं आई? मैम मुझे आ रही है. आ रही है, फिर किस वजह से मुझे समझ
अगर आपको नहीं आ रही तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं मुझसे। ओके मैम। नंबर 6, मैम ये टोटल will he play basketball? Now again this is interrogative sentence because will is used in the start of the sentence. There is question mark at the end of the sentence. इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचान करते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस? मैम जब क्वेश्चन मार्क होता है मैम जब क्वेश्चन मार्क होता है। गुड। जब क्वेश्चन मार्क है तो आपने क्या करना है? विल को स्टार्ट में यूज करना है। विल ही प्ले बास्केटबॉल? प्लीज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अगेन। Make it positive sentence. Sentence number 6. Yes, you make sentence number 6 a positive sentence. मैम कौन सा? Sentence number 6. Make मैम it positive. मैम he will play. Yes, Shafi. He will play. Basketball. Ma'am, he will play basketball. Excellent. Ayan Farooq, do participate, all of you. He will play basketball. This is now positive sentence. Now make it negative sentence. I will. I will not. Ayan Farooq. He will play basketball. And he will play basketball. This is positive. He will. I said make Ma'am, he will play basketball. And he will play basketball. No, I said make it negative sentence. He will not play basketball. Good, excellent. Ma'am, he will not play basketball. Ma'am, He will not play basketball. will not play basketball. He will not play basketball. Now this is negative sentence. Very good. Number 7. This is again a negative sentence. He will not play basketball. Yeah, this is He will not play basketball. already. He will not play basketball. Number I am going to laugh. laugh. I am going to I am going to laugh. now. I am going to laugh. Going to लगा के भी future tense. I am not. अगर I के साथ am लगा हुआ है तो आपने क्या लगाना है? Laugh से पहले क्या लगाना है? Going to. Okay, look here. Now we are going to end this lesson. So look here. I shall go to school tomorrow. I shall not go to school tomorrow. And shall I go to school tomorrow? Now, if I use shall in the start of the sentence, it will become interrogative sentence. He is going to laugh because is used, so you will use going to with laugh. Okay? So this is all about today's lesson. I will share this worksheet with you. तो आप ये क्या करना है? Practice करनी है आपने. मैम मुझे आपकी बात नहीं समझ आई. I said this is all about today's lesson. आपका lesson complete हो गया है. Now this is time for grade 3. Your next lesson. What is your next lesson now? Which subject? Science. तो आपको ये वर्कशीट में शेयर कर दूंगी. What you will do? You will do this work in your English notebooks, and then you will do practice of future tense by yourself. ठीक है, आपने तीनों किस्म के सेंटेंस 3 kinds of sentence बनाने हैं. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. खुद से आपने एग्जांपल्स लेनी है. सिंपल सेंटेंस राइट करके
आपने इसको प्रैक्टिस करना है. इफ यू विल प्रैक्टिस मोर देन यू विल लर्न क्विकली. ठीक है. और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको जो नहीं समझ आया आपने उसको अपने पास लिख लेना है. ठीक है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर टेंस की जो बात समझ नहीं आती, जॉट इट डाउन एंड आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. एंड डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश notebooks. Now send your mark your attendance and your name with your class section in chat box quickly. Then we will end this lesson. चौधरी साहब हैं. मैम इसके बाद की क्लास है. After this is your science class. ये जो है ना बताऊंगा पाया इसका. इसके बाद आपकी साइंस की क्लास है. जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करें. Send your name with your class section in chat box quickly. Okay, good. Those who have done. Attendance is done. Grade 2. Yes. Okay, we are. Yes, ma'am. So we are going to end this lesson. Take care of yourselves and Allah Hafiz.